Hello everyone, I Cheher Kalra welcome you all to the official channel of Dr. R.S. Agarwal. In this video, we will discuss important question and answer of chapter Reproduction in Animals. हम ये चैप्टर बेटा ऑलरेडी कर चुके हैं. अब इस वीडियो बनाने का पर्पस है क्या? ताकि आपको एग्जैक्ट वर्डिंग्स पता चले जो आपने अपने एग्जाम्स में लिखने हैं. ओके सो आप लोगों से स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि प्लीज फर्स्ट हैव लुक एट द वीडियो ऑफ द चैप्टर और उसके बाद आप ये देखिए ताकि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस पता चल सके प्लस जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए. ओके सो लेट्स बिगिन नाउ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिप्रोडक्शन, व्हाई इज इट एसेंशियल. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब है कि प्रोड्यूस organisms so that a population can keep on moving ahead. ठीक है, सर्वाइवल जो है पॉपुलेशन का वो आपका सस्टेन कर सके. एसेंशियल क्यों है? ताकि आपकी जो कहते हैं ना जो जनरेशन है वो चलती रहे, ये इसका मेन पर्पस है. ओके सो the production of new organisms from the existing organisms of the same species, that is known as reproduction. क्यों essential है? ये आपके keywords है. It is essential because for survival of species on the earth, next continuity of life on earth, gives rise to more organism with some same basic characteristic. exactly same नहीं but कुछ तो हाँ same होता है. next, difference between sexual and asexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जहां पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. एसेक्सुअल वो जहां पर वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो मोर वेराइटी आपको ऑफस्प्रिंग्स में देखने को मिलती है, एसेक्सुअल में नहीं मिलती. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर टाइम टेकिंग प्रोसेस, एसेक्सुअल इज नॉट टाइम टेकिंग प्रोसेस. एंड फोर्थ यू कैन राइट ऑन द एग्जाम्पल. सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स यहाँ पर डज नॉट है, यहाँ पे डू नॉट. ओके और यहाँ पर क्या है? इन्वॉल्व्स आर. ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ पेरेंट्स, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज देखने को मिलते हैं. यहाँ पर क्या है? दे वेरी फ्रॉम पेरेंट्स कहीं हद तक. यहाँ पर ओनली वन पेरेंट, यहाँ पे इन्वॉल्व टू पेरेंट. यू मे ऑल्सो राइट फर्दर डिफरेंसेस लाइक दिस. फोर्थ, लेस टाइम, यहाँ पे आएगा मोर टाइम. Fifth example, you have algae, you have amoeba. Then over here in case of sexual, human beings या mammals लिख सकते हैं. फाइन, आगे बढ़ते हैं. Describe the process of fertilization in human being. Fertilization कैसे होती है? Fertilization होती है फ्यूजन से मेल और फीमेल gametes के. So in process of fertilization, sperms come in contact with ova. Sperm is a product which is released by males and ova is released by females. So one of the sperm may fuse with the egg. हो सकता है fertilization के वक्त कि एक sperm एक egg से fertilize कर जाए और आपको fertilized product मिल जाए. Okay, so the nuclei of the sperm and egg, they fuse to form a single nucleus. एक न्यूक्लियस बनता है जिससे आपका फर्टिलाइज एग बनता है, which is called as zygote. So कहने का मतलब क्या है? Sperm plus egg cell, which is ovum, that gives you zygote. Okay, so in human beings the fertilization that takes place inside a female body and is known as internal fertilization. Next, difference between zygote and fetus. difference क्या है? क्या zygote और fetus कैसे अलग है? सबसे पहला, zygote सिंगल सेल है, fetus वहीं पे मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो चुका है और टिश्यू बनाता है. यहाँ पर it is formed during fertilization, that is when sperm fuses into ovum, right? यहाँ पर क्या है? embryo वो post fertilization बनता है in which zygote multiplies and multicellular body. यहाँ पर zygote और embryo आएगा. make clear over here. next, What is metamorphosis? Give example. अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस करा था कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है. सो मेटामॉर्फोसिस चेंजेस होते हैं जो हम
ऑब्जर्व करते हैं इन लाइफ साइकिल ऑफ लार्वा टू टैडपोल. ओके, so that is what is called as metamorphosis. So it says the transformation of larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. It is a biological process which involves sudden and abrupt changes in the body structure. एकदम से देखने को मिलते हैं and it is generally observed in amphibians and insects. Example is frog and butterfly. Next, differentiate between internal and external fertilization. अब internal fertilization वो fertilization होती है जो ह्यूमन बॉडी, जो मैमल्स के अंदर होती है, और external fertilization वो होती है जो outside होती है. So over here it says fusion of male and female gametes inside female body, और यहाँ पर क्या आएगा, outside a female body. Okay, next, high chances of survival of offspring, so less number of ova or eggs are produced, और यहाँ पर क्या है, low chances of survival and large number of eggs are produced. यहाँ पर ज़्यादा eggs produce करे जाते हैं. Example cow, hen, human beings. यहाँ पे fish, frog, starfish, etc. Next, difference between zygote and embryo. First, zygote is single celled organism. यहाँ एम्ब्रियो क्या है, मल्टी सेल्यूलर, एज वी डिस्कस. जाइगोट फर्टिलाइजेशन के वक्त बनता है, एम्ब्रियो पोस्ट फर्टिलाइजेशन बनता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ये जाइगोट मल्टीप्लाई होता है ताकि वो मल्टी सेल्यूलर बॉडी बना सके. नेम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड नेम द ऑर्गन विच प्रोड्यूस अ मेल गेमीट. सी पार्ट, व्हाट आर स्पर्म्स. सो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर पेयर ऑफ टेस्टिस, sperm duct and a penis. Next, organ producing the male gamete, that is testes. Then sperms होते क्या हैं, जो मेल गेमीट टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पर्म्स. ओके, नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स. ओविपेरस एनिमल्स वो होते हैं बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट. ओके, तो वो कैसे होगा, बाय लेइंग एग्स. यहां पर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड अ बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट, यानी कि एग्स ले होती है लेकिन इनसाइड अ बॉडी होनी, वहां पे फ्यूजन हो जाती है. नेक्स्ट, दीज एनिमल्स ले फर्टिलाइज्ड ऑब्लिक अनफर्टिलाइज्ड एग. यहां पे दे गिव बर्थ टू यंग वंस. नेक्स्ट, female lays eggs in a safe place in an environment but chances of survival is always doubtful. कि होगा या नहीं, कितने ग्रो होंगे, कितने ऐसे होंगे जो हवा के साथ से वैसे बह जाएंगे, we are not clear about it. Females deliver young ones out of the body after attaining certain stage of growth. कुछ जब growth हो जाती है then only this change takes place. Thus chances of survival of young one is greater. Examples, birds and reptiles, यहाँ पे mammals. Next, What do you understand by in vitro fertilization? देखो, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आपके फीमेल बॉडीज होती हैं वहाँ की, जैसे अगर ह्यूमन बींग्स के बारे में हम बात करें तो उनका ओविडक्ट क्या होता है, ब्लॉक्ड होता है. इस रीजन की वजह से एक तो चलो ठीक है रिलीज हो रहा है लेकिन वो स्पर्म से नहीं मिल पाता. सो फॉर दैट रीजन हम एग ले लेते हैं फ्रॉम द फीमेल बॉडी एंड स्पर्म ले लेते हैं फ्रॉम द मेल बॉडी, और उनको आर्टिफिशियल कंडीशंस देते हैं सो दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड वो आपका डेवलप हो जाता है जाइगोट में, एंड देन दैट इज प्लेस एट जाइगोट इज प्लेस इनटू फीमेल बॉडी, और उस बेबी की ग्रोथ नॉर्मल होती है जैसे बाकी बेबीज की होती है. बट क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप टेस्ट ट्यूब में होता है इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबीज भी बोलते हैं. सो इट सेज एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस कैरिड आउट इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. After in vitro fertilization, zygote is allowed to develop into mass of cell and is then transferred into uterus for subsequent development. मतलब कि उसको वापस डाल दिया जाता है वहां पर. Many women they fail to conceive due to certain problems, and in vitro fertilization helps such women to bear a child. Okay? So with respect to this, I wind up video 1 of Q&A of your repro chapter. With respect to this, if you have any doubt, you may ask me in the chat section. Thank you.